Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. And it's now being a third chapter, that is synthetic fibers and plastic. I hope the first two chapters are clear to you. Now, before beginning the actual topic, the synthetic fibers, we will just recapitulate what is fibers. Fibers are known as thin strands that are joined together to form fabric. Like in class 6, you must have read the fiber to fabric journey, in which you have learned that fiber is a small thin strand that is being twisted together to make a yarn, and then the yarn is being twisted together to make a fabric. And fabric is basically a piece of cloth that is used by you or your parents or the industries to make different types of items. Okay, that is a fiber, that is a fabric, but fabric is obtained from yarn and yarn is obtained from fiber. So in that class you must have learned that fiber is of two types, that is natural and synthetic fiber. Okay, and the natural fiber are those fibers that are obtained from nature, like a cotton, silk, wool and jute. Like cotton is obtained from cotton plant, silk is obtained from silkworm, wool is obtained from camel, rabbit, yak, and jute is obtained from jute plant. Now the next one is our synthetic fiber. That what is a synthetic fiber? Synthetic fibers are those fibers that are made by human beings and in industries. Means human beings will make the synthetic fiber, but in industries and in firms, so that on a large scale production can take place. Now, what is the characteristic of synthetic fibers and what are different types of synthetic fibers, we will discuss over here in this video. Now, the synthetic fibers example is a rayon, polyester, and many more. Now, the first is synthetic fibers. Synthetic fibers in plastic are similar to natural fibers and are made up of very large units. आपका नेचुरल फाइबर की तरह ही होता है, बट एक्चुअल में सिंथेटिक फाइबर सिंथेसाइज किया जा रहा है. ऐसा वर्ड कंटेन सिंथेसाइज. सो दैट मीन्स वो सिंथेसाइज किया जा रहा है. जब कोई चीज़ सिंथेसाइज की जा रही है दैट मीन्स कि वो नेचुरली नहीं बन रहा. सो दैट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज यूनिट. बहुत अलग अलग यूनिट्स हम कंबाइन करते हैं सो दैट हमारे पास एक सिंगल टाइप का फैब्रिक ऑब्टेन्ड हो या फाइबर ऑब्टेन्ड हो. So these large units are called polymers. These large units are called polymers. Now, what is a polymer? You must have learned that in your class 6, 7th or 8 you must be learning about equations, and in equations you read about polynomials, quadratic equations, binomials, monomials. So what are they कि जहाँ पे अलग अलग टर्म्स ऑफ कंबाइन करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स कंबाइन करते हैं एंड आपको एक सिंगल मेन प्रोडक्ट मिलता है. तो सेम वे में पॉलीमर्स होते हैं आपके जो बहुत लार्ज यूनिट्स होते हैं, जो मोनोमर्स से छोटे छोटे पार्ट से कंबाइन होके आपको एक लार्ज यूनिट बनाता है, एंड दैट लार्ज यूनिट इज योर पॉलीमर्स. सो पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम मोनोमर्स. So the small units are called monomers. These are made by combining many similar or dissimilar smaller units called monomers. Okay, depending upon the types of chemicals used. अब इन monomers में हम अलग अलग chemicals use कर सकते हैं. हमें कैसा फैब्रिक चाहिए, कैसा फाइबर चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग केमिकल्स यूज़ करेंगे एंड अलग अलग तरह का फाइबर बनाएंगे. लाइक योर रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक. नाउ द फर्स्ट वन टाइप इज रेयन. नो वाटर रेयन. रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क. नाउ व्हाई इट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क? बिकॉज सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म एंड इट इज़ वेरी शाइनी. सेम वे रेयन इज़ वेरी शाइनी, चीप होता है, ईजिली सिल्क की तरह दिखता है, बट एक्चुअल में ये हमने सिंथेसाइज किया किससे? वुड पल्प से. फ्रॉम वुड पल्प. वुड पल्प इज़ बेसिकली आपको वुड जो ट्री होता है, जो जिससे आप वुड लेते हैं, उसी का वुड पल्प लेते हैं आप एंड देन उससे आप अपना फाइबर बनाते हैं. दैट इज़ रेयन. सो इट इज़ अ मैन मेड फाइबर. मैन ने बनाया तो मैन मेड फाइबर, बट इसका नेचुरल सोर्स क्या आपका? वुड पल्प. क्लियर है? इट इज़ चीप देन सिल्क. सिल्क से सस्ता होता है एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर. और जैसे सिल्क फाइबर्स को आप इकट्ठे मर्ज करते हैं ताकि आपके पास एक फैब्रिक मिल जाए सिल्क का, सेम वे में हम रेयन के फाइबर के स्टैंड्स को आपस में वीव करते हैं, वोवन करते हैं, सो दैट वी विल गेट अ रेयन फैब्रिक. इट कैन बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. आप इसमें अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंगली डाई कर सकते हैं. अब रेयन में एक्चुअल में क्या मिक्स होता है क्लास? कॉटन मिक्स होता है ताकि हमारे पास बेड शीट्स, वूल मिक्स होगा तो कार्पेट्स बनेंगे. मीन्स रेयन जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसमें अगर कॉटन मिक्स करते हैं तो आपके पास बेडशीट्स मिल जाएंगे, एंड वूल मिक्स करते हैं तो आपके पास कार्पेट्स मिलेंगे. ओके,
दैट्स आपके कार्पेट्स बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, आपके कुछ बेडशीट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं। लाइक आपने देखा होगा कुछ बेडशीट्स ऐसी होती है जिस पर अगर आप प्रेस रखो तो चिपक जाती है प्रेस उस पर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेयॉन। ओके, नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेयॉन, दीज आर बेसिकली रेयॉन की रेयॉन आपको कैसे दिखता है, लाइक दीज आर वेरी शाइनी, तो दैट्स व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्की, सिल्क एक्चुअल वाला शाइन करता है आपका। क्लियर है। Now the next fiber is our nylon. What is nylon? It was the first fully synthetic fiber. Completely हमने synthesize किया था by using coal, water and air. Okay, हमने कोल वाटर एंड एयर को एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर मर्ज कराया था, रिएक्ट कराया था, एंड सो दैट हमें एक नया फाइबर मिला, दैट इज नोन एज नायलॉन। नायलॉन के स्ट्रैंड जो नायलॉन फाइबर होता है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, स्ट्रेचेबल होता है, लाइट होता है, हल्के होते हैं वेट में, लस्ट्रस, शाइनी होते हैं एंड ईजी टू वॉश, आप इजीली वॉश कर सकते हो। ये इसकी प्रॉपर्टी है नायलॉन की ना। अभी कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपको, सॉक्स बनाने में, रोप्स बनाने में, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, ये सब बनाने में आपका नायलॉन यूज़ होता है। और नायलॉन आपका पैराशूट्स, रोप्स और रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम के नायलॉन के कर्टन्स हैं, नायलॉन का पैराशूट बैग है, नायलॉन की रोप है, नायलॉन के सॉक्स हैं, टूथब्रश है। टूथब्रश में कहाँ पे क्लास, जो आपके आगे के ब्रिसल्स होते हैं ना, जिसको आप ब्रश जो आप टीथ पे रब करते हो, दैट आर योर ब्रिसल्स, दैट आर मेड अप ऑफ योर नायलॉन। Okay, so this was our nylon that we have studied. Now the next one is polyester. The next one is polyester. As the word contains poly and ester, so polyester is made up of two words, poly plus ester. Poly is many and ester is a single unit. So जब भी हम बहुत सारे esters को आपस में combine करेंगे, so we will get a polyester. And what is an ester? आपने देखा होगा कि कभी कभी fragrance आती है बहुत अच्छी सी, लाइक आप परफ्यूम्स यूज़ करते हो, दे कंटेन ईस्टर। सो बेसिकली जो आपको फ्रूटी लाइक स्मेल दे आर योर ईस्टर्स। ओके, अब पॉलिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प होता है, रिंकल फ्री होते हैं, इन पे इसलिए रिंकल नहीं पड़ता। मतलब जैसे आप कॉटन क्लोथ्स होते हैं, आप उसे वॉश करके मशीन्स में वॉश करके ड्राई करते हैं तो उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, लाइनें पड़ जाती हैं, बट पॉलिस्टर पे लाइनें नहीं पड़ती, ईजी टू वॉश है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल एंड ईजिली आपका ड्रेस मटीरियल अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज टेरेलिन, जो कि बेसिकली बहुत सारे फाइन फाइबर्स को कंबाइन करके बनता है। नेक्स्ट पॉलिस्टर में हमने नेक्स्ट वैरायटी पढ़ी है पीईटी, दैट इज पॉलीइथीन टेरापेथेलेट। पीईटी की फुल फॉर्म इज पॉलीइथीन टेरापेथेलेट, इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। पॉलिस्टर की वैरायटी क्लास और कुछ नहीं है यहाँ पे। P stands for poly, E stands for ethene and T stands for terephthalate, is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products। यहाँ यूज़ होता है आपका। नाउ नेक्स्ट इज पॉलीकॉट। पॉलीकॉट आपका एक तरह का वेराइटी है जिसमें पॉली ईस्टर एंड कॉटन मिक्स किया जाता है, एंड पॉली वूल में क्या है, पॉली ईस्टर एंड वूल मिक्स किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्राइलिक फाइबर, जो आर्टिफिशियल वूल की तरह रिजेंबल करता है। सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल फाइबर विच रिजेंबल्स वूल। वूल क्या होता है, जो आपको गर्म रखने में हेल्प करता है। तो वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए हमें सस्ता वूल मिले तो हमने क्या किया, एक्राइलिक फाइबर बनाया, सो दैट हमें रिलेटिवली चीप क्लोथ्स मिल जाए जो हम ईजिली वियर कर सकें। सो that was our types of synthetic fibers. The next one is your plastic, which is also kind of synthetic one. Now अब हर एक प्लास्टिक एक जैसा नहीं होता, एंड यू नो कि प्लास्टिक क्या होता है, जो आपकी पॉली बैग्स में यूज़ होता है। सी द पॉली बैग, पॉली मीन्स सिंथेटिक वन है एंड बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट्स आपने कंबाइन करें सो दैट आपको पॉली बैग्स मिल जाए। फाइन, सो दैट मीन्स पॉली बैग्स जो होते हैं वो आपको प्लास्टिक होते हैं एंड दे आर सिंथेटिक फाइबर इन नेचर। सो ऑल द प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट्स। ये सारे फाइबर्स जो प्लास्टिक होते हैं सबका सेम अरेंजमेंट नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। कोई सीधे सीधे ज्वाइन किए जाते हैं, कोई क्रॉस करके ज्वाइन किए जाते हैं, मीन्स किसी की अरेंजमेंट सीधी सीधी होके ज्वाइन करके एक प्लास्टिक बनता है, या किसी की अरेंजमेंट अलग अलग करके हम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो प्लास्टिक कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू एनी शेप। आपको पता है प्लास्टिक किसी भी शेप में ईजिली मेल्ट कर जाता है, किसी भी शेप में ईजिली मोल्ड किया जा सकता है। अब प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो सकती है। अब हम एक्चुअल में हमारे पास प्लास्टिक दो तरह की होती है।
The one is thermosetting and the one is thermoplastic. Now the word suggests thermoplastic. Thermoplastic means thermo का मतलब होता है heat, means ऐसी प्लास्टिक जो हीट के कांटेक्ट में आने के बाद ईजिली किसी भी शेप में कन्वर्ट की जा सके. थर्मो मीन्स हीट एंड द प्लास्टिक मीन्स आपकी जो नॉर्मल पॉली बैग्स में यूज़ होती हैं. सो ऐसी प्लास्टिक जो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सके, डिफॉर्म हो सकते बाय यूजिंग हीट, दैट इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक. लाइक फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, जो आप घर में पॉली बैग्स लेके आते हैं, पॉलीथीन लेके आते हैं जिसमें आपको सब्जियां आती हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, या पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. पीवीसी क्या है क्लास, आपने देखा आपके घर में वायर्स लगी हुई होती हैं, टेलीफोन्स की वायर्स होती हैं या आपकी केबल वायर्स होती हैं या आपकी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके साथ एक वायर बनी हुई आती है. दैट वायर इज मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड दैट इज योर पीवीसी, दैट स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड. या आपने टीवी में देखा होगा पीवीसी की एड्स आती हैं, दैट इज़ योर थर्मोप्लास्टिक, जिसको आप हीट करके किसी भी फॉर्म में डिफॉर्म कर सकते हैं. दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, कार ग्रिल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स. कहाँ यूज़ हो रही है, कॉम्स बनाने में, टॉयज बनाने में, कार ग्रिल्स बनाने में. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग मीन्स सेट, सेट मतलब जो जम गया. सो एक बार हीट अप्लाई करने के बाद ऐसी प्लास्टिक जो एक फॉर्म में जम चुकी है, दैट इज़ नोन एज thermosetting plastic. These are the some plastics which when molded once cannot be softened, means easily soft नहीं की जा सकती, मोल्ड नहीं की जा सकती किसी और फॉर्म में बाय हीटिंग, ईजिली नहीं. थर्मोप्लास्टिक में आप ईजिली हीट सप्लाई करके उसे किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट थर्मोसेटिंग में आप ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते. दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. क्लियर है. नाउ फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा कि पीछे एक ब्लैक कलर का एक हैंडल लगा हुआ होता है आपका. दैट ब्लैक कलर हैंडल, आप कुकर रोज़ गैस पे रखते हैं प्रेशर कुकर, बट क्या वो प्रेशर कुकर जब रोज़ हीट से गर्म होता है, क्या उस हैंडल की शेप चेंज होती है उस ब्लैक कलर के हैंडल की? नहीं. दैट मीन्स वो जो प्लास्टिक है दैट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ बेकेलाइट. दैट इज़ मेड अप ऑफ बेकेलाइट. सो एग्जाम्पल योर बेकेलाइट एंड मेलामाइन. बेकेलाइट कहाँ यूज़ होता है क्लास? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स. जो आपको स्विचेस बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज मेलामाइन. मेलामाइन आपका एक तरह का प्लास्टिक है दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर. किचनवेयर में कहाँ पे क्लास? आपने सुना होगा क्रॉकरी आती है मेलामाइन की, जो शाइन भी करती है, इजिली एंड नॉन ब्रेकेबल होती है. सो दैट इज़ योर मेलामाइन जहाँ पे वो यूज़ होता है. क्लियर है. दिस इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. यू कैन सी थर्मोसेटिंग्स में डस्टबिन आ रहे हैं आपके, या वायर रोलर्स आते हैं. थर्मोप्लास्टिक में आपके इसलिए सिंपल सी बकेट्स तो ईजिली कन्वर्टेबल हो जाती हैं. नाउ व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स? ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ईजिली रिएक्शन शो नहीं करते, लाइट इन वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं. मीन्स ड्यूरेबल, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. अब कोई भी चीज़ जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, लंबे समय तक चलेगी, लॉन्ग लाइफ है उसकी, तो क्या वो ईजिली इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाएगी? नहीं. दैट्स वाई प्लास्टिक्स आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे आर हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट. सो उसी के बेस पर हमने दो टर्म्स निकाले. द वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड द अनदर वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. बायोडिग्रेडेबल मीन्स द वर्ड सजेस्ट बायोडिग्रेड, मीन्स जो भी सब्सटेंसेस हैं एनवायरनमेंट में वो बायोलॉजिकल मेथड से, मीन्स ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से या नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाएं, दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. अ मटेरियल दैट डिकम्पोजेज थ्रू नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. एग्जाम्पल फ्रूट्स हैं, पेपर्स हैं, पील्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, ईजिली इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में. So they are known as biodegradable material. Now the next one is non-biodegradable material. Now what is non-biodegradable material? ऐसे मटेरियल नॉन आके दैट मीन्स वो सिंपल नेचर में जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनकी हेल्प से डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं. सो दे आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. Materials that are not easily decomposed by natural processes is termed as non-biodegradable materials. Example plastic and tin. Okay. Now, what
अब हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक आपका इजीली डिकम्पोज नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे आएगा। एंड आप सबको पता है, अभी थोड़े टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी और रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा था, से नो टू प्लास्टिक। अगर आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो आपके ऊपर चालान काटा जाएगा, चालान लगेगा। तो दैट मीन्स कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो रही, बट प्लास्टिक की प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल हो रही है। ओके जब प्लास्टिक की प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल हो रही है तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्लास, दैट मीन्स कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ईजिली डिकम्पोज नहीं हो रहे, इन्वायरमेंट में उसका साइड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। सो व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन प्लास्टिक, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं प्लास्टिक के। प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, बहुत टाइम रहता है डिकम्पोज करने के लिए, देयरफॉर इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, सिंथेटिक फाइबर है तो वो ईजिली बर्न नहीं होता, और जब वो बर्न होता है तो हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस करता है। Clear, the burning process in synthetic material is quite slow and it does not get completely burned or easily. पूरा बर्न नहीं होता, पूरा बर्न नहीं होगा, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस पीछे छोड़ के जाएगा। सो इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन इन द प्रोसेस। सो बेसिकली बहुत सारे पॉइजनस गैसेज रिलीज करेगा अगर वो आपके एटमॉस्फेयर में बर्न हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सबने बीच में कभी सुना होगा कि कुरकुरे प्लास्टिक का बना हुआ है। सो लोगों ने उसे बर्न करके देखा था क्या वो पर्टिकुलरली प्लास्टिक का बना हुआ है या नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअल में कुरकुरे प्लास्टिक का बना हुआ नहीं है, क्योंकि अगर वो प्लास्टिक का बना हुआ होता तो वो प्रॉपरली बर्न नहीं होता। क्लियर है। तो कुछ चीज़ें फेक होती हैं, कुछ चीज़ें एक्चुअल में रियलिटी होती है। लाइक आपको जो प्लास्टिक में आप जिसमें वेजिटेबल्स लेके आते हैं, आप उसे बर्न करके देखो ना, तो वो कम्प्लीटली बर्न होगा, वो श्रिंक कर जाएगा बट वो बर्न नहीं होगा। दैट मीन्स जो चीज़ बर्न ही नहीं हो रही तो वो सोचो कितना हार्मफुल है आपके नेचर के लिए, वो अंडर हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ बीइंग यूज्ड इन समवेयर। अभी बताते हैं कहाँ पे यूज़ हुई थी। सो अल्टीमेटली वो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है आपको, एयर पॉल्यूशन देगा, लैंड पॉल्यूशन देगा, वाटर पॉल्यूशन देगा। वाटर पॉल्यूशन कैसे देगा, वो वाटर बॉडीज़ में जाएंगे, एनिमल्स ड्रिंक करेंगे, अगर बाय चांस वो उनके लंग्स के अंदर अटक जाती है तो क्या होगा, स्टिक हो जाएगी, तो क्या होगा अल्टीमेटली वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे एंड दे विल डाई। ओके एंड अब सेकेंड एग्जाम्पल, लैंड पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। कैसे, लैंड पे आप सब ऑब्वियसली आप सबके घर में प्लास्टिक्स यूज़ होती है, सब क्या करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है प्लास्टिक के थ्रू डंप कर देते हो एंड देन वो प्लास्टिक आपकी मार्केट में रोड्स पे आ जाती है। सो अब अगर उसमें कुछ ईटेबल्स है, आपको पता है जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो उन्हीं डस्टबिन के थ्रू जो फूड आया उसी में फीड करते हैं। अब जब वो फीड करते हैं, काउस क्या करती हैं, उस प्लास्टिक को साथ खाते हैं जिससे उनका विंड पाइप चॉक हो जाता है, रुक जाता है एंड वो मर जाती हैं। ओके दैट्स व्हाई वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक। बट इसका एक अच्छा इम्पैक्ट था, व्हाट वाज दैट, कि वो अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बर्न नहीं हो रही है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे भी डिकम्पोज नहीं हो रही है, तो वो एक जगह यूज़ किया गया था। एंड व्हाट वाज दैट थिंक, किसी एक मिशन में ये यूज़ की गई थी प्लास्टिक। सोच के देखो कहाँ पे यूज़ की गई थी। अगर आप सबको याद हो या आप सब ने मिशन मंगलयान देखी हो, तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया था कि ये प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे भी रिड्यूस नहीं हो रही एंड लाइट इन वेट है। सो उन्होंने उसी प्लास्टिक को डिफॉर्म करके अपने सैटेलाइट्स में यूज़ की थी। दैट मीन्स वहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ तो है बट एक्चुअल में इन्वायरमेंट में उसका साइड इफ़ेक्ट है। ओके क्लास, नाउ अब ऑब्वियसली प्लास्टिक का साइड इफ़ेक्ट है तो वी नीड टू कंजर्व अवर इन्वायरमेंट। So what are the 4 R's from which we can conserve our environment? That is reduce, recycle, reuse and refuse. Reduce की जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उसको मत लेके आओ। रीयूज़ कि अगर आप किसी प्लास्टिक आइटम को यूज़ कर सकते हो तो आपको उसे बार बार यूज़ करना चाहिए। लाइक आपके घर में ऑयल की कैन्स आती हैं, वो कैन प्लास्टिक होती है, आप एक बार ऑयल यूज़ करने के बाद वो कैंस किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ रीयूजेबल। रिसाइकल प्लास्टिक कंजप्शन है, रिसाइकल है कि आप उसे किसी फॉर्म में रीयूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट रिफ्यूज़ की अगर आपको नहीं चाहिए तो से नो टू प्लास्टिक एंड यूज़ योर जूट बैग्स। सो दीज आर द 4 R's टू save our environment. So in this way we have completed the chapter that is synthetic fibers and plastic.
Now what are the topics we have studied is natural fibers, synthetic fibers, types of synthetic fibers, plastics, types of plastic, thermosetting thermoplastic, and what are the effects of environment of plastic on environment. So the question that you need to answer is, and class please do answer the questions, why the government is enforcing the use of jute bags or paper bags instead of plastic. गवर्नमेंट आपको बार बार क्यों इन्फोर्स कर रही है, क्यों फोर्स कर रही है कि आपको जूट बैग्स या पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स. द सेकेंड वन इज़ वाई द हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर आर मेड अप ऑफ बैकेलाइट. प्रेशर कुकर के हैंडल्स या यूटेंसिल्स के हैंडल्स आपके बैकेलाइट के क्यों बने हुए होते हैं. आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड क्लास प्लीज डू आंसर द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ instead of using your Google. That's all for today. Thank you and have a nice day.